generally what I've observed in ML interviews is they focus a lot on edge cases. जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो एज केसेस होते हैं, आई गेस बिकॉज कि जब भी तुम एमएल का कोड करते हो तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ एनॉमली कि हाँ कहाँ पे क्या आ सकती है, कहाँ पे कुछ आउटलायर आ सकता है क्या. सो जितने भी मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, दे फोकस अलॉट ऑन एज केसेस. Hello, guys. Welcome again. So, in the this is an extension of the sixth podcast. In the previous two videos, we recorded around 2 3 weeks back. So there, Shivansh shared his journey कि ML में कैसे start करते हो, क्या करना चाहिए. So, if you don't know who Shivansh is, so Shivansh is a final year undergraduate at IIT Kharagpur and recently bagged an PPO from LinkedIn as an applied research engineer. So in this coming video, he'll be sharing his experience कि LinkedIn के साथ इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, and along with this Amazon वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि Amazon वाला एक्सपीरियंस कैसा था. So hi Shivansh, welcome once again. Yeah, hi Jalaj, long time. Yeah, thanks for having me again. Okay. So yeah, so we'll start with the basic question like क्या how was your interview experience with the LinkedIn? Yeah, so the starting was with the referral again, as I talked in those two videos, key how important is referral. So I got a referral from professor at IIT Kharagpur, and then I called, like they gave me a call for an interview. So first of all, I guess the most uh, a big hurdle for an applied ML role is actually getting an interview call, because there are a lot of people applying and there's no structured process for it. So as I told in the previous two videos, you could watch it there, that how to actually get an interview call. So that's there. Um, so I got an interview call and they told me there would be two rounds. One will be of ML and another would be of coding. So for the preparation, what I did is I brushed up my LGODS skills there and did an ML revision, like basic ML what I did. And the one thing that you should really focus on during ML interviews is you should be very crisp and clear with your CV. I mean, the projects that you have done, basically, because they are the only one to judge yourself, right? तो वहाँ पे तुम्हें एकदम पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, और उससे रिजल्ट क्या है. ये चारों क्वेश्चन हर हर एक प्रोजेक्ट के बारे में पता होने चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में. तो मैंने ये तीनों चीज़ें करी, और उसके बाद या दिस वाज आई गेस द प्री द प्री फेज की ये मैंने तैयारी करी थी. Okay. So since we are talking about preparations, so like there's a set path in when it comes to software development or algorithms role like कि ये set of questions कर लो, ये lead code का ये कर लो, you will be good with interviews. But when it comes to ML, it's a kind of a not I will say new field, but yeah, it's a growing field. So इतना कोई resources available नहीं है और कोई ऐसा set path available नहीं है. तो what are like how one can prepare for interviews for ML roles? उसमें आपका क्या take है और क्या क्या resources जो हो सकते हैं कोई use कर सकता है इसके लिए? या सो एक्चुअली ये काफी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है इन एमएल फील्ड कि हाउ टू जज अ पर्सन वेदर द पर्सन इज गुड इन एमएल और नॉट, बिकॉज इन सॉफ्टवेयर यू कैन सी हाउ गुड ही इज डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड ऑल. In ML, you can't judge on based on the competitive programming skills, although they are necessary, but they are not sufficient, I guess. So, how you can prepare for ML interviews? Because actually, what they look for is your, conceptual clarity. How well do you know the field? How good you are in the mathematics and all these things. So, so there are some things that I did, and I can suggest those. Again, I'm not sure if they are the best part, but yeah, these worked for me. So I had a doc of questions actually. This doc contained around 300 questions, which are like short, simple, subjective questions regarding ML concepts, basic ML concepts, right? In ML interviews, if you're going for an ML interview, they won't ask you very high level questions. They would ask you some basic conceptual question. If you are really into ML and you know them, you can answer them. Like ऊपर ऊपर से चीजें नहीं पूछेंगे, वो तुम्हें डेप्थ पे जाके कि हाँ इसके पीछे क्यों हर चीज क्यों काम कर रही है, इसके पीछे का फंडा क्या है, वो चीज पूछते हैं. तो आई हैव अ डॉक ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, कुछ 250 300. तो वो मैंने प्रिपेयर करे थे. उसके अलावा देयर इज अ वेबसाइट एंड इट लाइक रिसेंटली लॉन्च हुई है. आई अगेन दोनों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वहां पे जाके देख सकते हो. उस वेबसाइट में अकॉर्ड टॉपिक वाइज, जैसा लीड कोड में होता है कि टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन हैं एंड तुम्हारा प्रोग्रेस ट्रैक होता है, उसमें सेम चीज है. उसमें टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंटीजर, दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो टॉपिक वाइज है and काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन गो देयर एंड प्रिपेयर. मैंने जब प्रिपेयर किया था तब मेरे पास वो नहीं था. उसके अलावा आई टॉक टू सीनियर्स बेसिकली जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हुआ था, एंड आई आस्क देम कि क्या जनरल टॉपिक्स होते हैं जो पूछते हैं.
इंटरव्यूज में, बिकॉज मेरा सीवी वाला सेक्शन ऐसा था कि मैंने जो जो प्रोजेक्ट्स लिखे थे वो मैंने खुद किए थे, लाइक फ्रॉम स्क्रैच। तो मुझे उनमें बिट्स एंड पीसेस पता थे हर एक चीज का, कि मैंने क्यों किया, क्या किया है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि क्यों एमएल ऐसा चीज है कि तुम टीम प्रोजेक्ट करते हो, एंड इफ यू राइट समथिंग ऑफ सम टीम प्रोजेक्ट इन योर सीवी, एंड देन तुम्हें उसके बारे में पूरा नहीं पता है, तो आइदर यू टेल देम बिफोर हैंड और यू जस्ट डोंट मेंशन दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो ये छोटी सी चीज मेरे साथ, जैसा मैं बताऊंगा आगे अमेजोन में, कि वो थोड़ा लोड हो गया था उसकी वजह से। तो हाँ, वो चीज थी। और हाँ, यही यार, मतलब ऐसा होता है कि एमएल में अगेन कोडिंग वाला पार्ट तो तुम वहां से कर सकते हो, लीड कोड एंड ऑल थिंग्स जो कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, बट एमएल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड सम बुक्स, तुम्हें बेसिक फंडे पता होने चाहिए, एंड जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर लो। तो ये जो क्वेश्चन की लिस्ट है प्रिपेयर कर लो, यही काफी होता है। द मेन द क्रक्स इज तुम्हें सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है एमएल के, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, इनसे रिलेटेड जितने भी फंडे यूज होते हैं वो सब पता होने चाहिए अच्छे से। ओके ओके, थैंक यू शिवांश। मतलब एटलीस्ट यू गॉट सम आइडिया कि कैसे प्रिपेयर कर सकता है बंदा स्टार्ट करने को। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि आपका लिंक्डइन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे आपने 2 राउंड थे, तो क्या उसमें कोडिंग राउंड का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या हुआ था? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग राउंड में। एक्चुअली तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन कोडिंग राउंड 1 घंटे का कुछ था। दे आस्क्ड मी अबाउट 15 मिनट स्टार्टिंग, तो सीवी पे पूछते हैं कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, हाउ डिड यू गेट इनटू एमएल एंड ऑल। एंड अगेन आई एम नॉट, आई गेस, अलाउड टू टेल द क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चंस थे दे वर मोर ऑन एरेज एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन जनरल, वेरी बेसिक, नॉट वेरी हाई लेवल डायनेमिक प्रोग्रामिंग। So ये चीज थी। They actually in generally what I've observed in ML interviews is they focus a lot on edge cases। जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो एज केसेस होते हैं, आई गेस बिकॉज कि जब भी तुम एमएल का कोड करते हो तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ एनॉमली, कि हाँ कहाँ पे क्या आ सकती है, कहाँ पे कुछ आउटलायर आ सकता है क्या। सो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, दे फोकस अलॉट ऑन एज केसेस, मतलब वो हर ऐसा कुछ क्वेश्चन देंगे जहाँ पे बहुत कुछ थोड़े ज्यादा एज केसेस होंगे, तो तुम्हें सबके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये लिंक्डइन में मेरे साथ जो क्वेश्चन था उसमें भी कुछ एज केसेस थे, उनके बारे में सोचना था। एक बार मैं शायद बीच में कुछ अटका था, बट यार इट गॉट रिजॉल्व एंड चिल क्वेश्चन था, आई वुड से कि मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन था। या दिस वाज कोडिंग राउंड ओके विद लिंक्डइन। ओके, तो देन मूव टुवर्ड्स द एमएल राउंड। तो एमएल राउंड का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? उसमें क्या क्या हुआ था? ML round में they started again with some basic questions on decision trees and all, and कुछ probability statistics के concepts हैं, optimization के concepts हैं, उन पे question पूछे थे। 1 or 2 questions they went deeply कि हम, मुझे इसका derivation आता है क्या, how did this result come, okay, and in general कि अगर मैं ये मॉडल या ये मशीन लर्निंग का यूज करना चाहता हूँ तो कौन से डेटा सेट का यूज करना सही रहेगा, these kind of questions। उसके बाद में या दिस वाज ऑल आई गेस। उसके बाद एक एचआर राउंड टाइप का हुआ था, जिसमें दे एक्चुअली आस्क्ड मी अबाउट व्हाट माय एम इज और हाउ वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड ऑल, एंड जनरल एचआर के क्वेश्चंस पूछे थे। एंड सरप्राइजिंगली, मतलब वो एचआर का कॉल था या नहीं, बट उसी के एंड में मुझे बता दिया था कि या यू आर सेलेक्टेड। ओके ओके शिवांश, थैंक यू। मतलब इसमें आपने पूरा बताया कि लिंक्डइन में आगे क्या क्या प्रोसेस था और कैसे कैसे हुआ था। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द अनदर इंटरव्यू ऑफ योर्स, लाइक तो हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद Amazon एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम लिंक्डइन, और क्या क्या चीजें हुई थी इसमें आपके साथ? या सो अमेजोन में what happened again, starting very good senior of mine recommended me and उन्होंने रेफरल दिया था अमेजोन में। the position was applied scientist internship, and start हुआ था कि रेफरल था। और अमेजोन में एक्चुअली काफी ग्रिल किया था, उनके काफी सारे राउंड्स थे। तो the first actually started with, like, there are 2 rounds। first of all there was a coding round, right? तो कोडिंग राउंड में the questions were related to binary tree, okay, एंड कुछ एरे बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, एंड अनदर वाज सम एरे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अगेन आई कैन टेल। तो या अगेन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस वर अगेन मीडियम डिफिकल्टी, मीडियम और हार्ड के कहीं बीच में थोड़ा सा। और उसके अलावा एमएल राउंड में, या सो द प्रोसेस वाज समथिंग लाइक इट, they were to be 1 round of coding, two rounds of CV expected, like वो बढ़ भी सकते थे, मेरे केस में वो बढ़ गए थे।
2 राउंड्स ऑफ सीवी एंड ऑल। तो जो पोजीशन थी उसमें ये अप्लाइड साइंटिस्ट इंटर्न की जो पोजीशन है उसमें काफ़ी अच्छा नॉलेज ऑफ रिसर्च, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए होता है एमएल साइड का। फाइनली व्हाट हैपेंड इज़ मुझे रिसर्च इंजीनियरिंग इंटर्न ऑफर किया था उन्होंने, नॉट फॉर दिस पोजीशन ड्यू टू सम मेस्ड अप आई क्रिएटेड इन लाइक द फर्स्ट 2 इंटरव्यूज। So yeah, this was all the starting. ओके, सो या दिस इज द होल क्रक्स की इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था। नाउ विल डीप डाइव इनटू द राउंड्स। सो Yeah. आपका फर्स्ट एमएल राउंड में क्या एक्सपीरियंसेस था और कैसे कैसे पूछा गया था, क्या क्या हुआ था? हाँ, so again they started the first round was an ML and उस पे सीवी बेस ही था पूरा, ठीक है? तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाउ इज़ योर सीवी, मतलब प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने बोला था। फिर कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स में वो काफ़ी डीप गए थे कि इसमें ये क्यों किया, इसमें ये क्यों किया, है ना? उससे रिलेटेड मुझे जो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कुछ उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है, जैसे कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है ना, डायलेशंस हैं, तो उसपे क्वेश्चन पूछे थे कि ऐसा क्यों किया, क्या इसके पीछे फंडा होता है और क्या कर सकते थे इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तुम्हें फिर पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा जो मैंने मिस्टेक्स करी एक्चुअली उस राउंड में, वो ये थी कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने हम 2 जनों ने मिलके काम किया था, और वो प्रोजेक्ट था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़, एनएलपी को यूज़ करी थी उसमें। अब मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो उस प्रोजेक्ट के 2 साल बाद दिया था। तो काफ़ी सारे, और मैंने उसके बाद कभी रिवाइज़ नहीं किया था एनएलपी, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स में उतने अच्छे से याद नहीं थे। एंड वो जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनका वो स्पेशलिटी था, लाइक वो उसी में कोर रिसर्च करते थे। तो उन्होंने फिर क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे और मुझसे काफ़ी डीप में गए वो। एंड अगेन मुझे पता नहीं था और मैंने शुरुआत में मना नहीं किया, तो उसके बाद जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तब थोड़ा-सा हेजिटेट होने के बाद मैंने बोला कि एक्चुअली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दीज़ क्वेश्चन्स, मैंने रिवाइज़ नहीं करा है। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन है, मतलब नहीं करना चाहिए होता है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आइदर तुम स्टार्ट में बोल दो या फिर तुम उसको मेंशन ही मत करो। तो उसकी उसकी वजह से वो शायद इंटरव्यू थोड़ा खराब गया, या तो यही था पूरा। ओके, सो या दिस वाज ओके राउंड फॉर यू। सो सेकंड राउंड में क्या क्या हुआ था और उसमें आपको क्या लगा, कैसे डिफरेंट है फर्स्ट राउंड से? सेकंड राउंड वाज़ मोर ऑन द यू नो क्योंकि अमेज़न इज़ अ बिग कंपनी, तो वो सिस्टम मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन टाइप कुछ था। दे एक्चुअली आस्क्ड मी अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन, जैसे कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट में तुम्हें एक पूरा नया सेगमेंट डालना है, तो उसके लिए तुम स्टार्ट कैसे करोगे मशीन लर्निंग, कहाँ कैसे यूज़ करोगे, पूरा एक पाइपलाइन जो बनाना होता है, वो पूरा पाइपलाइन बताओ। तो वो एक प्रॉब्लम था और काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसमें स्टार्ट से तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी थी। तो अगेन आई स्टार्टेड ऑफ वेरी नाइसली, मैंने चीज़ें बताई कि ये ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट उसमें मिस्टेक ये हो गई कि ये बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कुछ परफेक्ट आंसर नहीं, ठीक है? तो तुम्हें एक्चुअली काफ़ी क्लियर करना चाहिए इंटरव्यू से कि वो एग्ज़ैक्टली क्या चाहते हैं, मतलब मैं किस लाइन ऑफ थॉट पे ज़्यादा फोकस करूँ। मैंने ये पूछा नहीं और फिर मैं अपनी साइड से मेरा एक लाइन ऑफ थॉट था, उनका लाइन ऑफ थॉट था, वो कनेक्ट नहीं हो पाया था। और ओके, चलिए सिस्टम डिज़ाइन अगेन, तो इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है, केवल मशीन लर्निंग मॉडल्स ही नहीं, डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे, और बिग डेटा होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा है और काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे हो रहा है, तो तुम्हें उस स्केल को ध्यान में रखते हुए भी चीज़ें सोचनी होती हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे फिर उन्हें बोला था कि कुछ इस तरह करें, एंड देन ही टोल्ड मी कि नहीं, नहीं मुझे इस साइड में कुछ चाहिए। तो वही था कि लाइन ऑफ थॉट मिलना, एंड देन यू नीड अ वेरी गुड ग्रास्प ऑन मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन, मुझे बिग सिस्टम को कैसे स्केल करना है। मशीन लर्निंग ऑन स्मॉल डेटा सेट एंड मशीन लर्निंग ऑन वेरी बिग डेटा सेट्स इज़ टोटली डिफरेंट गेम। तो वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी। ओके, बाकी इन जनरल उसमें भी अगर तुम कुछ भी चीज़ बता रहे हो, तो उसमें फिर थ्योरी में जाके वो डीप में पूछेंगे। जैसे तुम बताए कि मैं इन सबको प्री प्रोसेस करूँगा, इनसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? कौन-सी थ्योरी यूज़ करोगे? कौन से मॉडल्स यूज़ करोगे? क्या ऑप्टिमाइज़ेशन होगा? वगैरह-वगैरह। तो वो सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। सो यहाँ तक आपके नॉर्मल जेनेरिक जो 2 राउंड होते हैं वैसे हुए थे, लेकिन आपने बोला कि आपका एक तीसरा राउंड एक्सटेंशन भी हुआ था कुछ। तो हाँ, क्या तो रीज़न था उसका और मतलब उसमें क्या-क्या हुआ था? कैसे डिफरेंट था आपके पहले 2 राउंड से, पहला 2 राउंड से? हाँ, तो जो थर्ड राउंड था एक्चुअली इसलिए हुआ था कि मेरे 2 राउंड तो अच्छे नहीं गए थे, ठीक है? बट कुछ-कुछ उन्हें अच्छा लगा था शायद। तो उन्होंने बोला था कि टू कन्फर्म वी वांट अ थर्ड राउंड, एंड इसमें मैं तो थर्ड राउंड अगेन एमएल पे ही था, क्योंकि कोडिंग वाला मैंने अच्छा कर दिया था। थर्ड राउंड वाज़ अगेन सीवी बेस्ड राउंड। उसमें उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे वो मोस्टली सीवी और फिर कुछ, तो मैं उसमें अच्छी चीज़ ये करी थी थर्ड राउंड में कि मैंने स्टार्ट में बोल दिया था कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन कंप्यूटर विज़न। मैं नेचुरल लैंग्वेज साइड में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैंने काम ही उस पे ज़्यादा किया है। तो द जो इंटरव्यू था उन्होंने
फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कंप्यूटर विजन से रिलेटेड, एंड क्योंकि मैंने उस पर बहुत काम किया था तो मुझे वो सारे क्वेश्चंस आते थे, तो मैं वो बताता चला गया, एंड देन दिस राउंड वेंट वेरी स्मूथ, काफी अच्छा हुआ। तो इसी के बाद लाइक, तो बेसिकली ये भी कुछ 45 मिनट्स का ही था। तो आफ्टर दिस की दे टोल्ड मी आफ्टर सम डेज कि ठीक है, वी आर ऑफरिंग यू रिसर्च इंजीनियरिंग इंटर्न पोजीशन, सो या दैट्स समथिंग। Okay. Thank you, Shivansh. Thank you for sharing journey. जैसा कि तुमने बोला था कि लोग अगर मिस ना गए, तो जो कुछ एक दो कंपनीज थी जैसे IBM और स्विगी, तो यहाँ पे इनके भी प्रोसेस एकदम सिमिलर ही थे, नथिंग डिफरेंट, वही कोडिंग प्लस ML एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर बोथ, सो या रेफरल्स एंड ऑल, keep that in mind. Okay. Okay. Thank you, Shivansh. Thank you so much. So guys, यहाँ तक हमने इनकी Amazon और LinkedIn जर्नी काफी डेप्थ में डिस्कस करी, कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, और जैसे इन्होंने मेंशन किया IBM भी सिमिलर ही था इनका, क्या सिमिलर प्रोसेस में हुई थी चीजें। तो जितने भी लिंक्स वगैरह क्वेश्चंस के थे या जो भी है, तो आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस या जो रिसोर्सेज जो उन्होंने शेयर करे थे डिस्क्रिप्शन में तुम लोग जाके विजिट कर सकते हो। एंड थैंक यू शिवांश फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद अस अलॉन्ग विद दिस योर जर्नी की आप ML में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस इफ यू वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शिवांश की 2 वीडियो और भी है जिसमें उन्होंने एक ML की जर्नी कैसे स्टार्ट करो, क्या क्या करना चाहिए, वो शेयर कर दो। आई बटन पर क्लिक करोगे मिल जाएगी तुम्हें। और इसमें इन्होंने ये शेयर करा कि कैसे इन्होंने लिंक्डइन और Amazon क्रैक करा था। So thank you, Shivansh. Thank you once again. Yeah, thanks Viraj for having me, and yeah, nice for your future